Hello students, welcome to unit number 6, General Principles and Processes of Isolations of Elements. Now at presently we are on the verge of this unit. As we know that in last lecture we start a refining process. So in the process of refining, the simple meaning of refining is the process of purifying the crude metal is called as refining. So under this title of refining, we completed a distillation process. We know that this distillation process is used for zinc, mercury and for cadmium, and all these metals are volatile in nature. That's why we have to use a distillation process. Number 2 is the liquefaction process, is method for the purification of such metal which contain impurities which are less fusible than the metals themselves. For example, in the case of tin and lead, which is purified by this method. Third one is the electrolytic refining. We know that a large number of metals, likewise copper, silver, gold, lead, nickel, chromium, zinc, aluminium, etc. are refined by this method. Then after zone refining method, or sometimes we call as a fractional crystallization. And this method is extremely useful for the producing metals of very high purity like germanium, silicon, boron, gallium and indium, etc. By this method, we get a 7 to 10 ppm of impurities, right? Then vapor phase refining. In the case of vapor phase refining, so the first we have to convert metal should form a volatile compound with a suitable reagent, and after this volatile compound should be easily decomposable so that recovery is easy. In this title of vapor phase refining, we studied about the Mond process and Van Arkel process. Mond process for nickel and Van Arkel method is such a beautiful method, or is a very useful method for preparing the ultra pure metals. Likewise in the case of zirconium and titanium. And now we start the next method. It's a modern versatile method for the separations as well as purifications and testing the purity of elements and their compounds. Once again, this method is based upon the principle that the different components of a mixture are adsorbed, right? Not absorbed, but adsorbed to different extent on an adsorbent. So chromatography is essentially not a chemical process, but it's a physical process. So it consists two different type of phases. One is stationary phase, and number 2 is a mobile phase. The stationary phase can either a solid, in the case of alumina or silica gel, and tightly bound liquid on a solid support such as paper, in which the liquid water is held by the solid cellulose. And the mobile phase, on the other hand, can be liquid, gas or a supercritical fluid such as carbon dioxide. So depending upon the physical state of the stationary phase and the moving phase, also on the process of passage of the moving phase, chromatography can be several types such as column chromatography, partition chromatography, gas chromatography. Likewise, right? I think so. In your previous year in standard 11 in the in GOC, we studied about the paper chromatography, thin layer chromatography for these organic compounds, right? But now today we start with a column chromatography. So column chromatography is one of the simplest chromatographic technique and which is widely used. In column chromatography, an adsorbent such as alumina or silica gel or some ion exchange resin is packed into the column, and this alumina or silica gel or some type of resins, they are stationary phase. And now the mixture to be separated is dissolved in a suitable solvent, in the case of mobile phase, and applied to the top of the column.
So different components of the mixture are adsorbed of different extents depending upon their polarity. If your compound having a high polarity, then the extensiveness of this with the stationary phase is different, right? So later the adsorbed component are extracted or eluted from the column with a suitable solvent, right? The component which is more strongly adsorbs on the column takes longer time to travel through the column than a component which is weakly adsorbed. So thus the various components of the mixture are separated by a travel through the stationary phase, or sometimes is called as an adsorbent. Suppose a mixture of three different components A, B and C which is applied to the column for separation. Further, suppose that component A is most strongly adsorbed, component B is moderately absorbed, while component C is only weakly adsorbed, right? So it means that upon elution, the three components begin to separate from these three different color bands, right? So if the mixture is colored, the component C which is weakly absorbed travel fastest down the column, followed by component B, while component A is eluted last of all. So these are collected in a different flask, and evaporation of the solvent from each flask gives the desired component. If however the mixture is colorless, right? So another case is if the mixture is colorless, then what can we do? So the column is extracted with a suitable solvent or a mixture of solvents, and several small fractions are collected in a different flask. With the help of suitable physical or chemical method, the flask containing the same component are identified and mixed together. So evaporations of the solvent from the fractions thus combined gives the desired components. So in this way, the different components of the mixtures are separated, right? So once again, this technique is especially suitable for such elements which are available only in minute quantities, and the impurities are not very much different in chemical properties from the एलिमेंट्स टू बी प्यूरिफाइड. जैसे हमें पता है कि जो लैंथेनाइट फैमिलीज होती है, तो वहां पे बिल्कुल जो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसकी जैसे कहते हैं सिमिलरिटी ही होती है. सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स विच आर प्यूरिफाइड बाय दिस टेक्निक यूजिंग आयन एक्सचेंज एज अ एडसॉर्बेंट, राइट? तो हम इसकी तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं. यहाँ पे जो फिगर है वो हम एक बार देख लेते हैं फिर से. ये दोनों फिगर यहाँ पे मैंने दी हुई है, वो है फर्स्ट. पहले हम लेबोरेटरी प्रोसेस देखेंगे. मेथड यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्वेंट है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, ए बी और सी यहाँ पे लिया हुआ है. ये जो है स्टेशनरी फेस है, यहाँ पे ग्लास रूल रखा हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो वो यहाँ से निकल के ए बी और सी में यहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है. इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होगा कि दिस इज द कॉलम, यहाँ पे अंदर एडसॉर्बेंस है, यहाँ पे बाहर ओवन है, डिटेक्टर है, फ्लो मीटर है, यहाँ पे फ्लो इंजेक्टर है, और जो सॉल्वेंट टैंक से उसका जो है वो यहाँ से इस तरह से डिटेक्ट होके इंडस्ट्रियल मेथड में कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी मेथड्स यूज कर सकेंगे. तो सिंपल है. इसमें दो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज से उसका जो पोलैरिटी का जो डिफरेंस होने की वजह से जो भी अच्छी तरह से जुड़ेगा, यानी जो ज्यादा पोलर होगा या जो ज्यादा एब्जॉर्ब्ड होगा तो वो रह जाएगा, और जो कम एब्जॉर्ब होगा वो पहले फास्ट निकल के आएगा. ओके, सो हमें ये पूरा क्लियर हो गया है. और जो हमारा जो लास्ट पोर्शन है अभी जो ये लेसन का हम जो अभी इसके पूरा जो लास्ट पोर्शन है वहां पे हम चले जाएंगे. एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन की बात यहाँ पे की हुई है. सो हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम फॉइल्स जो हमें पता है कि विच आर यूज्ड फॉर रैपिंग फाइन आर्टिकल्स लाइक फोटोग्राफिक फिल्म्स होती है. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हमें जो भी हमारे पास जो टैबलेट्स या जो भी हमारे पास जो आता है वो एल्यूमिनियम फॉइल में ही आता है. सिगरेट्स में भी एल्यूमिनियम फॉइल का कई बार इस्तेमाल हो रहा है. चॉकलेट्स के रैपर में या स्वीट्स के रैपर में भी एल्यूमिनियम फॉइल से उसका पैकिंग किया जाता है. फाइन डस्ट ऑफ एल्यूमिनियम जो होती है विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम पेंट्स एंड लैकर्स, यानी एल्यूमिनियम पेंट्स मुझे करना है या एल्यूमिनियम लैकर्स में मुझे जाना है तो फाइन डस्ट ऑफ एल्यूमिनियम यूज होती है. जैसे एल्यूमिनियम पाउडर मिक्स विथ लिंसीड ऑयल,
राइट। तो लिंसीड ऑयल में उसका पाउडर मिक्स करके, सो विच इज साइंस लाइक सिल्वर, और उसको कई बार हम सिल्वर पेंट भी बोलते हैं, लेकिन उसमें सिल्वर इस्तेमाल नहीं हुआ है, एल्यूमिनियम ही इस्तेमाल हुआ है। एल्यूमिनियम पाउडर बीइंग हाईली रिएक्टिव एंड यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमने एल्यूमिनियोथर्मिक प्रोसेस में पढ़ा था, जो एल्यूमिनियम पाउडर है वो हाईली रिएक्टिव है, हमें मालूम है। सो इट्स यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एल्यूमिनियोथर्मिक प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन। जैसे मेरे पास Cr2O3 था या मेरे पास Mn2O3 था, तो उसको निकालने के लिए मुझे एल्यूमिनियम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एलिंगम डायग्राम में हमें मालूम है कि Al2O3 का नीचे का स्टेज है, यानी उससे हम ऊपर वाले का जो है वो ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं, यानी अपना एल्यूमिनियम खुद का अपना क्या करेगा, जो Al2O एल्यूमिनियम पाउडर है वो इस तरह से क्रोमियम ऑक्साइड में से क्रोमियम या मैंगनीज ऑक्साइड में से मैंगनीज निकाल देगा। Being light and good conductor of electricity, on weight for weight basis, aluminium conducts twice as copper. So aluminium is used for making transmission cables and for winding and moving coils for dynamos or motors. Light भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वेट टू वेट से हम देखेंगे तो एल्यूमिनियम कंडक्ट्स ट्वाइस एज कॉपर। समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम इज अ चीप मेटल विच रेजिस्ट कोरोजन, क्योंकि उसके ऊपर Al2O3 का जो प्रोटेक्शन लेयर होता है, जैसे उसका जो डायगोनल रिलेशनशिप में भी हमने पढ़ा था, वहां पे भी एस ब्लॉक में भी, तो हमें मालूम है। सो देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स के लिए, कैन्स फॉर ड्रिंक्स, ट्यूब फॉर टूथपेस्ट, picture frames, trays, etc. is used in building for making angles for doors and windows, etc. इसी तरह से एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज फॉर फ्लैश लाइट बल्ब्स इन इंडोर फोटोग्राफी। आपने इंडोर फोटोग्राफी में देखा होगा कि एल्यूमिनियम पाउडर का भी यूज फ्लैश लाइट में हो रहा है। एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम बीइंग लाइट एंड दे आर वेरी यूजफुल इन लिस्टेड, जैसे एल्यूमिनियम की एलॉय है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज या मैग्नेलियम या ड्यूरेल्यूमिनियम, तो वहां पे ये उसका जो यूज है वो यहाँ पे हो रहा है। अब एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में देखेंगे तो एल्यूमिनियम का 95% है, कॉपर ओनली 5%। दे आर लाइट स्ट्रॉन्ग एलॉय विथ अ गोल्डन लस्टर, सो रेजिस्ट टू कोरोजन, यानी कॉइन्स में, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, पिक्चर्स फ्रेम में उसका इस्तेमाल हो रहा है। मैग्नेलियम, राइट, तो आप देखेंगे नाम में ही आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन है। हियर द एल्यूमिनियम इज 95% एंड मैग्नीशियम इज ओनली 5%। लाइट, टफ एंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से विच इज यूज्ड इन लाइट इंस्ट्रूमेंट, बैलेंस बीम्स, प्रेशर कुकर्स में उसका यूज यहाँ पे हो रहा है। फिर ड्यूरेल्यूमिन, तो उसमें एल्यूमिनियम 95% है, सभी में 95 ही है। कॉपर 4% में यहाँ पे चला गया है, ऊपर एल्यूमिनियम ब्रोंज में 5 था, वो 4, बाकी के 1% में मैग्नीशियम और मैंगनीज के 0.5 रिस्पेक्टिवली लगे हुए। सो इट्स अ लाइट, टफ एंड डक्टाइल रेजिस्टेंस टू कोरोसिव एक्शंस में वो काम कर रहे हैं। सो मेकिंग एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, प्रेशर कुकर में भी उसका ड्यूरेल्यूमिन का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो ये थोड़ी बात हमने की हुई है एल्यूमिनियम के बारे में। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉपर। सो कॉपर बीइंग अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, हमें मालूम है कि कॉपर जो है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होने की वजह से विच इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। Copper being a good conductor of heat, so it is used for making utensils, steam pipes, kettles, evaporating pans and calorimeters. It is used in several alloys which are even tougher than the metals itself. जैसे जो मेटल है उससे भी ज्यादा टफ होने की वजह से उसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रश, कॉपर 60 है, जिंक 40 है, and for making utensils, condenser tubes, wires and parts of machinery etc. दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है वो है ब्रॉन्ज, हमने आप कई बार देखा होगा ब्रॉन्ज मेडल या ऐसा भी आपने देखा है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर, जिंक एंड टीन, राइट। यहाँ पे कॉपर 80 है, टीन जिंक 10 है और टीन 10 है। सो फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए या स्टेच्यूज या कॉइन्स एक्सेट्रा के लिए। और एक हमने पढ़ा है जर्मन सिल्वर, राइट। सो कॉपर 25 to 30, जिंक 25 to 30 एंड निकल 40 to 50।
फॉर मेकिंग सिल्वर वायर्स, रेजिस्टेंस वायर एक्सेट्रा। कई बार हमने जो जर्मन सिल्वर का जो कोई हमारा जो पास जो मोन्यूमेंट्स होता है या कुछ ऐसा होता है तो वहां पे भी हम जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स लुक लाइक सिल्वर बट इट्स नॉट कंटेनिंग इवन द सिंगल परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज एडेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ कॉपर। दो के हमारे जो यूजेस है एल्यूमिनियम कॉपर के खत्म हो गए हैं। अभी हम जिंक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि यूजेस ऑफ जिंक क्या है। तो देखिए, जिंक जो है विच इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। यानी हमें मालूम है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट है और Fe का नियर अबाउट 0.45 वोल्ट है। यानी आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो लेकिन हमें अगर हम इसको ऊपर जिंक का प्रोटेक्शन करा दे यानी उसका गैल्वेनाइजिंग करा दे यानी हम गैल्वेनाइज्ड आयन बना दे तो जो एयर है या जो ह्यूमिडिटी है या जो वाटर कंटेंट होता है तो उसके कांटेक्ट में पहले जिंक आएगा तो जिंक एनोड की तरह अभी बिहेव करेगा। अभी Fe कैथोड हो गया है यानी Fe का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो इट्स अ वेरी गुड गैल्वेनाइजिंग आयन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। जिंक प्लेट्स एंड रोड्स आर यूज्ड इन बैटरीज। हमने पढ़ा होगा ड्राई सेल में ZnSO4 या कुछ इस तरह से तो उसका जो जिंक प्लेट है या रोड्स है वो इसमें बैटरीज में और ड्राई सेल्स में भी यूज हो रहे हैं। जिंक डस्ट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स। पेंट्स में एक्सट्रेशन ऑफ गोल्ड मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो मेरा गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रेशन साइनाइड प्रोसेस से किया फिर मैंने उसका डिस्प्लेसमेंट जिंक से ही करवाया था बिकॉज जिंक हैविंग अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि जिंक है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से जो सिल्वर और गोल्ड का जो साइनाइड कंपाउंड था वो जो कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उसमें से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। Zinc is used in making some useful alloys as mentioned under uses of copper listed below। जैसे कॉपर जिंक का हमने ब्रास में और ब्रोंज में भी और जर्मन सिल्वर में उसका एलॉय बनाने के लिए भी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और लास्ट में हम देखेंगे वो है यूजेस ऑफ आयन। आयन का यहाँ पे कहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए, कास्ट आयन की बात मैंने की थी पहले, जो पिग आयन था फिर कास्ट आयन था फिर रॉट आयन था, आपने पढ़ा होगा। कास्ट आयन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयन इज यूज्ड फॉर कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर में, गटर पाइप्स में, टॉयज में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयन एंड स्टील टू, रॉट आयन बीइंग टफ एंड रेजिस्ट टू रस्टिंग। क्योंकि पिग आयन में नियर अबाउट मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि 4% के आसपास उसमें कार्बन परसेंटेज होता है, लेकिन जैसे मैंने उसको कास्ट आयन में किया तो वो 3% के पास निकल गया और रॉट आयन में तो वो नियर अबाउट 0.2% में चला गया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस, रॉट आयन बीइंग टफ एंड रेजिस्ट टू रस्टिंग एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंकर्स में, वायर्स में, बोल्ट्स, नेल्स, रेलवे कैरेज कपलिंग्स एंड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में उसका यूज हो रहा है। और स्टील के बारे में तो हम सभी जानते ही है, स्टील इज अ वन टाइप ऑफ एलॉय है विच इज फाइंड्स नंबर ऑफ यूजेस। जैसे एलॉय स्टील इज ऑब्टेन्ड व्हेन अदर मेटल्स आर एडेड टू इट एंड सम एलॉय स्टील्स एंड देयर कंपोजिशंस प्रॉपर्टीज विच आर गिवन बिलो। जैसे फर्स्ट वन में दिया गया है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील है, इसमें Fe 73% है, क्रोमियम 18% है, निकल 8% एंड कार्बन 1%। प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, तो विच इज रेजिस्ट कोरोजन। कोरोजन का जो प्रोसेस है वो उसको रेजिस्ट करता है। फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कटलरी, साइकिल्स, ऑटोमोबाइल, पेन्स एंड एक्सेट्रा में वो काम करता है। फिर निकल स्टील के बारे में बात की हुई है, यहाँ Fe 96 to 98% है और निकल 2 to 4% है। निकल हम जैसे डालेंगे वो कोरोजन का रेजिस्ट करेगा, हार्ड एंड इलास्टिक भी है। फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन पार्ट्स। क्रोम स्टील है तो वहां पे क्रोम 2 to 4% है, रिमेनिंग Fe ही है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है और मेकिंग एक्सल्स या जो व्हीकल्स जो ज्यादा लोड वाले होते हैं उसकी में एक्सल्स होती है। बॉल बेरिंग में कटिंग टूल्स है एंड क्रशिंग मशीन्स के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। इनवार स्टील आपने कई बार पढ़ा होगा, आई थिंक सो Fe 64 है और निकल 36 है। प्रैक्टिकली नो कोफिशिएंट ऑन एक्सपांशन।
सो इसका मतलब ये वो चीज में मीटर स्केल्स में पेंडुलम रॉड्स में, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मेजरमेंट से एरर ना आए तो यहाँ पे इनवार स्टील का यूज हो रहा है। आपने देखा होगा एलनिको, यहाँ इसका मतलब ये एल्यूमिनियम है, इसमें निकल भी है और कोबाल्ट भी है। देखिए AlNiCO, सो एल्यूमिनियम 12% है, निकल 20% है, कोबाल्ट 8% है और रिमेनिंग Fe 60% है, विच इज हाईली मैग्नेटिक। सो फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स के लिए मुझे इसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखिए हमने पूरा जो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब साथ में एनसीईआरटी की बुक भी रखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने जो पूरा पोर्शंस लिया हुआ है वो पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे जो भी पॉइंट्स था उसको जितना भी हम उसकी डेप्थ में जा सके, जो हमेरा मेन हमेरा जो कंसर्न है कि भाई हम जो भी कुछ भी पढ़े या कुछ भी समझे तो उसको इस तरह से हम ले ताकि हमें कोई दिक्कत इसमें न हो सके। तो ये जो पूरा मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ है, अब मैं यहाँ से आपको एनसीईआरटी के यहाँ पे जो इंटेक्स सॉल्व्ड क्वेश्चन एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे जो क्वेश्चंस डाले हुए थे मैं आपको एक साथ उसके साथ यहाँ पे प्रोसेस में हम चले जाते हैं। चलो देखिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी के इंटेक्स सॉल्व्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन 6.1 का जो प्रोसेस है वो आप देखेंगे, आपने उसने किया हुआ है कि सजेस्ट कंडीशंस अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिलीज एल्यूमिना। यहाँ पे दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये एल्यूमिनियम वाला है Al2O3 और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO वाला रिएक्शंस दिया हुआ है। दो रेडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मुझे मैग्नीशियम एल्यूमिना को किस तरह से रिलीज कर पाएगा इसका मुझे मीन्स एल्यूमिनियम को एल्यूमिना में मुझे रिड्यूस करना होगा। तो देखेंगे हमने एलिंगम डायग्राम देखा था, ये देखिए ये जो है एल्यूमिनियम टू Al2O3 का डेल्टा G है और ये Mg टू MgO का है। एलिंगम डायग्राम जो हमने देखा था पहले, राइट, तो हमें मालूम है कि जो Mg टू MgO और Al टू Al2O3 का दोनों का जो कर्व था विच इज इंटरसेक्ट एट 1623 केल्विन, यानी 1623 केल्विन पे उसका इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है, यानी जहां पे उसका इंटरसेक्ट होगा वहां पे डेल्टा G रिएक्शन 0 हो जाएगा। और जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि द वैल्यू डेल्टा GF स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ Al2O3 एट टेम्परेचर बिलो 1623, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा मेरा विच इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी उसका मतलब ये हुआ कि व्हेन इक्विलिब्रियम 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट, तो 1 को 2 से जैसे मैंने उसको सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे ये रिएक्शंस मिलेगा, वहां पे डेल्टा G क्या है, नेगेटिव है। देयरफॉर जैसे 1623 से नीचे चले जाएंगे तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 टू एल्यूमिनियम, लेकिन हाउएवर अबव 1623 होगा, यानी 1623 से ज्यादा में टेम्परेचर, क्योंकि इंटरसेक्ट टेम्परेचर वहां पे आपको दिया हुआ है 1623, तो क्या होगा, तो क्या उसका जो रिएक्शंस होगा तो उसमें एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO टू Mg। यहाँ पे वो वहां पे एल्यूमिनियम है वो MgO को Mg में डाल देगा, यानी लेकिन बिलो 1623 है तो वहां पे Al2O3 एल्यूमिनियम है। ये जो क्वेश्चन है वो MCQ में भी JEE और NTA वाली एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन उसको MCQ स्टाइल से पूछा हुआ था। यहाँ पे जो पूरा है आपको यहाँ पे बताया हुआ है। फिर से आपके लिए जो मैंने एलिंगम डायग्राम फिर से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखिए मैग्नीशियम वाला है, ये एल्यूमिनियम वाला है, समझ में आ रहा है। देखिए ये जो है वो सडन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1623 के पास से वो यहाँ से कट होके निकल जाए, यानी ये आपका जो क्रॉस जो टेम्परेचर है वो है 1623। अभी 1623 से नीचे हम जैसे चले जाएंगे तो मैग्नीशियम हमारा वर्क करेगा, लेकिन जैसे उसके ऊपर चले जाएंगे तो वो एल्यूमिनियम की तरफ अपना वर्क शुरू कर देगा। तो यही जो पोर्शंस मैंने अभी आपको उस दिन भी पढ़ाया हुआ था, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे ये जो टेम्परेचर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1623, तो ये क्रॉस ओवर टेम्परेचर यहाँ से इसके लिए मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट है ऑल्दो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल इन प्रैक्टिस मैग्नीशियम मेटल इज नॉट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। व्हाई?
क्योंकि मैंने तभी भी बताया था कि अभी भी मैंने अभी बोला कि 1623 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है, यानी 1623 से जैसे मैं नीचे चला जाता हूं तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 टू एल्यूमिनियम, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शंस कहाँ का है, Al2O3 और MgO का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस था, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया था. सो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना, but magnesium is a much costlier metal than aluminium, hence the process will be uneconomical. लेकिन हमें मालूम है कि जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से उसकी कोई मुझे मैग्नीशियम का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. तीसरा है, why is the reduction of metal oxides easier if the metal formed is in the liquid state at the temperature reduction. या हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि account for the following fact, the reduction of a metal oxide is easier if the metal is formed in the liquid state at the temperature of reduction. तो वो तो हमें पता ही है कि मुझे मालूम है कि एंट्रोपी जैसे जैसे कैसे हायर होगी, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसियस में हायर होगी. So when metal is in the liquid state, then when it is in the solid state, तो एंट्रोपी इज हायर. Therefore the value of entropy change जो भी होगा वो भी पॉजिटिव साइड में चला जाएगा. So when the metals form is in the liquid state and the metal oxide being reduced in the solid state, so the value of T into delta H increase, so the delta H remain constant. Therefore value become more negative and hence the reductions become easier. 6.4 में हमें कहा गया है कि at a site low grade copper ores are available and zinc and iron scrap are also available. मेरे पास लो ग्रेड के कॉपर भी है और लो ग्रेड के मींस जिंक और आयरन, तो विच द टू स्क्रैप विल मोर सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग लीच्ड कॉपर ओर. तो मुझे मालूम है कि जिंक का जो पोटेंशियल है वो +0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, और Fe का -0.44 है, यानी जिंक का ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. Okay, so hence reductions will be faster in case of if zinc scrap are used, but zinc is a costlier metal than iron, so using iron scrap would be more economical, right? Next हम देखेंगे यहाँ पे NCERT के जो ये सोल्ड क्वेश्चंस खत्म हो गए. अभी हम इन अनसोल्ड क्वेश्चन जो नियर अबाउट 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे कि विच ऑफ द और मेंशन इन टेबल can be concentrated by magnetic separation method. तो हमें मालूम है कि ores which are magnetic in nature can be separated from the non-magnetic gang particles by magnetic separations. जैसे मैंने बोला था Fe2O3 हेमेटाइट था, मैग्नेटाइट था, सीडेराइट था, आयन पायराइट्स था. So being magnetic can be separated from non-magnetic silica and other silica by magnetic separation process. दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग. लीचिंग का जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है. वी नो दैट द बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम. फिर भी बॉक्साइट्स में मुझे सिलिका, आयन ऑक्साइड्स और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की इंप्यूरिटीज है, तो दिस इंप्यूरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग. लीचिंग का मतलब ये है कि द पाउडर बॉक्साइट्स ओर इज हीटेड विद अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH. तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो मेन और है वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से. लेकिन जो सिलिका है तो उसने वो सोडियम सिलिकेट बना दिया है, और TiO2 है और जो दूसरी जो Fe2O3 है तो वो तो इम्प्यूरिटीज में वो इनसॉल्युबल होने की वजह से वो तो यहाँ पे हम जैसे इम्प्यूरिटीज को फिल्टर करेंगे, और फिर जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ पे मुझे मिलेगा विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2 से, और देन हाइड्रेटेड उसको मैंने Al2O3 में चला गया. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम इज टू प्रिपेयर प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट ओर. लास्ट 2 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. एक रिएक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है Cr2O3 टू एल्यूमिनियम टू Al2O3 टू Cr, राइट. सो यहाँ पे दिया हुआ है थर्मोडायनेमिकली फिजिबल एज इज एप्रिएंट फ्रॉम द गिब्स एनर्जी वैल्यू, एंड व्हाई डज इट टेक it not take place at room temperature. तो आपने देखा होगा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी का, तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/ln के. इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से. तो ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट
any equilibrium between the reactants and the products, so the reactions does not occur at room temperature. However, at high temperature when chromium melts, so at that time T delta is increasing, so value of delta G become more negative, hence the reactions proceeds rapidly. तो ये इसका जो आंसर यहाँ पे मुझे मिल सकता है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। इट इज ट्रू दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस मैग्नीशियम कैन रिड्यूस SiO2 and silicon can reduce magnesium oxide. What are the conditions? तो आपको एलिंगम डायग्राम आपको फिर से देखना पड़ेगा। उसमें जो उसका जो इंटरसेक्ट जो यहाँ पे होता है वो टेम्परेचर है 1966। तो 1966 में जो मैग्नीशियम है वो सिलिकॉन का वहां पे प्रोसेस करके डेल्टा जी नेगेटिव में चल रहा है, और अबाउ 1966 में कब देखेंगे तो सिलिकॉन मैग्नीशियम का करेंगे और मैग्नीशियम को यहां से ग्रेटर देन 1966 में निकाल देंगे। देखिए ये एलिंगम डायग्राम है, ये देखिए 1966 का, ये सिलिकॉन वाला देखेंगे, ये भी देखेंगे। तो जो सिलिकॉन है उसका और मैग्नीशियम का तो नीचे वाला का वो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे 1966 से ऊपर चला गया है ये ग्राफ, तो मैंने अभी बोला था, तो आपको ये एलिंगम डायग्राम से ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।